Okay, I think we're ready to begin. This is again mensuration. We are continuing with the questions we were doing. This is paper two, so this is the calculator section. Okay, let's read through this question, see what it says. Um, there's a diagram shows the perimeter of a 400-meter running track. It consists of a rectangle measuring 100 meter by d meters and circles of diameter. Length of each semicircular arc is 100 meters. Calculate d. Okay, so this entire thing, जो सारा डिस्टेंस है ये है 100 मीटर. ओके, टोटल 400 है तो ये 100 है एंड दिस इज आल्सो 100. ओके, so arc length in a semicircle is basically 2 pi r divided by 2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100. सही. रेडियस क्या है? रेडियस जो है वो d ओवर 2 होता. सही. ये 2 इससे कैंसिल हो गया. रेडियस जो है वो d, आई गेट d divided by. ओके, हाँ सही है. अब 200 डिवाइडेड बाय पाई कर लेते हैं. पाई gives me 63.7. Here we go, 63.7. That is the value of D. Okay, calculate the total area of the shaded region inside the track. So inside the track, I have एक circle हो जाएगा. Okay, so one circle plus rectangle. सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. आर जो होगा वो फिर से 6 आया था ना, मैं दे देता हूँ डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 6. 63 point squared by 548.9. 548. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 955. आगे बढ़ते हैं. पार्ट सी gives you something else. S is the starting point and finishing point for the 400 meter race for the runner inside the lane. Uh, for the runner in the inside lane. A runner in an outer lane is always 3 meters from the inner perimeter. Okay, so वो 3 meters radius बढ़ गया. A runner, the outer lane starts at A, runs 400 meter and finishes at T. TS is equals to 3. ये सब बताया हुआ है क्वेश्चन में. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टी. अच्छा, अब अगर मैं, मुझे पता है कि वो 400 मीटर्स की रेस भाग रहा है ना, तो अगर मैं जो है वो पहले ये पूरा और ये पूरा और उसके अंदर 100 और 100 ऐड कर दूं, मेरे पास जो है जो आ जाएगा आंसर, वो किस चीज़ का आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा कि भाई टोटल लेंथ कितनी है. और मुझे पता है कि रेस जो है वो 100 मीटर्स की
वो 400 meters की है. So what I can do is I can say that if I try to find out the circumference of the circle, ये हो जाएगा 2 pi r. पुराना रेडियस जो है वो 3 meters से बढ़ गया. सही, पुराना रेडियस के डिवाइडेड बाई 2, 3.6 डिवाइडेड 34.8. 4.8. ओके. और टोटल लेंथ जो होगी जाएगी 5.843 प्लस 418.8. सही. तो कितने एक्स्ट्रा भाग रहा है वो भाई 18.8. 18.8 एक्स्ट्रा है, इसीलिए उसको हेड स्टार्ट दिया गया टू at 400 meters. O is the center of a semicircular part of the track. कैलकुलेट AOT है, एंगल निकालना है. अगर आपके पास आर्क लेंथ है, सही, विच इज 18.84, तो आप जो है वो एंगल निकाल सकते हैं ओवर 3 pi r 18. तो थीटा नहीं पता. 2 pi 4.83 18.84. कैलकुलेट कर लेते हैं. दूसरी साइड पे बाकी सारी चीज़ें जाके डिवाइड हो रही होंगी. 18.84 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 34.83 और डिवाइडेड बाई पाई. यार 30.9 आई थिंक हो जाएगा 1 decimal. Okay, so that is this slightly tough second part to the question. Give me a moment. Okay, आगे देखते हैं. The volume of a cone is this and the volume of a sphere is this. दो formulas दिए हुए हैं आपको. A solid is formed by joining a cone of radius 4.5 and height 0.66 to a hemisphere of radius 4.5 as shown. Calculate the area of the circle where they are joined. तो ये वाला एरिया निकाल रहे हैं. एरिया ऑफ अ सर्कल तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर्ड. So it should just be pi in 4.5. 4.5 squared pi. ये बन रहा है 63.6. तो ये कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर फार्मूला दिया हुआ है 1/3 pi r square h. तो पाई इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. okay? और हाइट जो है वो 7. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर. अब स्फेयर का अगर 4/3 pi r³ होता है तो हेमीस्फेयर का जो हो जाएगा 2/3 pi r³ हो जाएगा. तो ये 4.2 इन पाई डिवाइड बाई
160. 190.52. चेक अगर मिला के सही आ रहा है 52 352 centimeter cube is the correct answer. On. Okay. Part C, another solid of the same type is made by joining a cone of radius 5 and height h to a hemisphere of radius 5. Uh, तो ये ऐसा ही है लेकिन उन्होंने radius of 5 centimeter कर दिया. The cone and hemisphere have equal volumes. Calculate the height of the cone. तो ये अब hemisphere volume of cone equals to volume of hemisphere हो गया. So 1 over 3 pi r cube, pi r square h is equals to 2 over 3 pi r cube. अब ये भी 5 हो गया, 5 square h 5 cube. तो ये मुझे तो वैसे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होती हुई नज़र आ रही हैं. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. दिस आउट, आई एम गोइंग दैट आउट. तो मेरे पास बन कीजिए h over 3 equals to 10 over 3. h की वैल्यू सिंपल 10 आ जाएगी. Okay, the diagram shows a sector of A or B of a circle with center O and radius 9.3. The angle of the sector is 260 degrees. Calculate the length of the major arc AB. Theta over 360, 2 pi r. So 260 over 360 to 2 pi r जो है वो 9. 260 divided by 3 pi 42.2. Okay. Calculate the area of the major sector AOB. Major sector AOB area. So theta over 360 into pi r square per se. 260 over 360 to pi r squared. Six. तो ये आगे बढ़ते हैं. A sector of radius 0.8 centimeter, center O is removed from the sector AOB as shown in diagram 1. The shaded shape is used to make part of a conical funnel. AD is joined to BC as shown in the diagram. Okay. सही है. ये फोल्ड होके जो है वो एक फनल बन गया है. We know how to convert a cone to a sector and so on. The circumference of the conical funnel is the major arc B. This or circumference of the bottom of the conical major arc is B. So this. Okay.
तो ये कैलकुलेट द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फनल। सो मुझे जो है वो ये शेडेड एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया this part of the funnel. So I have to basically just calculate the curved shaded area, curved surface area for you. Okay, so this is area of large sector जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। तो 196 इधर 196.24 और एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर आ जाएगा 260 over 360 into pi r squared। सही है, 196.260 divided by 3 into pi r और 1 मेरे पास आ रहा है 194.787 आ रहा है, सो 1.5 हो जाएगा। वेरी स्मॉल पार्ट वाज एक्चुअली सही, क्योंकि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो ऑल दैट यू नीड टू डू। The funnel is completed by attaching an open cylinder of height 5 centimeters to the bottom of the conical part. They show that the radius of the cylinder is 0.578। तो ये सरकमफ्रेंस हमें पता होगी कि ये भाई ये छोटा आर्क लेंथ थी, तो हम छोटी आर्क लेंथ पहले निकाल लेते हैं। दैट्स 260 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई रेडियस जो जाएगा वो 0.8 जाएगा। सही है, वो क्या है, सर्कल के लिए वो सिलेंडर के लिए पूरा circumference ऑफ बेस है। सही है, सो दिस इज अ सर्कल, सो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो रेडियस मुझे नहीं पता। सही, ये कैंसिल हो गया, तो इट्स 260 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 8। मेरे पास आ रहा है 0.577, रिकरिंग डेसिमल बन रहा है, तो 57 है, तो 578 होता है। Calculate the external curved surface area of this cylinder। External curved surface area, so curved surface area होता है 2 पाई r h, 2 पाई 0.57, h is 5। 18.2। Calculate the volume of the cylinder, pi r square h। If you remember the formulas, easy to do, एक के बाद एक फार्मूला लगाते जाना है आपने, तो करेक्ट 5.2। So yeah, the angle of a sector of a circle radius 6 centimeters is 40 degrees. The area of the sector is k pi. Find the value of k. So area of sector is k pi. 40 over 360 into pi r squared k pi. pi से cancel हो जाएगा, k is 4।
Okay. Continuing, find an expression in terms of phi for the perimeter of the sector, giving your answer in the form. So I think that is easy. Paper 1 ka question 2. So it's paper 2. So perimeter is basically दोनों रेडियस ऐड करने हैं 6+6 और उसके साथ आर्क लेंथ ऐड करनी है 40/360 इंटू पाई और 6 सही है we were at 12 plus 4/3 pi. I think that is the correct answer. Yes, 12 plus 4/3 pi. I think a geometrically similar sector has a perimeter of this. Find the value of n. So if you notice, it's also in this format. That one is also in the same format. And मैं क्या कह सकता हूँ कि if they are similar, they must be in a ratio. What is that ratio? You can find that ratio by comparing this to this. आप कह सकते हैं कि 12 और 72 में जो रिलेशनशिप है वही इन दोनों भी रिलेशनशिप होना चाहिए तो 12 times 6 is 72 so 4/3 times 6 should be equals to n ओके n जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा the correct answer 8 sorry not 12 8 4 times 2 ओके क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि द डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म all lengths are given in centimeters calculate the area of the cross section of the prism क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं जो आइडेंटिकल शेप्स आपके पास आ रहे हों सही है क्रॉस सेक्शन ये वाला होता है तो क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसमें हाफ ए बी साइन सी यूज़ करेंगे तो हाफ 4 into 6 to साइन ऑफ 50 divided by 2.19 calculate the volume of the prism होता है area of cross section length एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आया मेरे पास 90 या 9 मल्टीप्लाइड बाय बस 180 पॉइंट फिर कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म को क्या होता है ए पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हमारे पास है पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन में हमारे पास एक साइड मिसिंग तो दो साइड्स और इसके बीच वाला एंगल हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं कोसाइन व्हेन आई यूज़ द कोसाइन रूल तो मेरे पास थर्ड साइड आ जाएगी कोसाइन रूल लगाना शुरू करता हूँ एक्स इक्वल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 50 सही है कॉस ऑफ 50 का रूट ले लूँ तो एक्स आ रहा है 0.598 सही है एक्स आ रहा है 4.598 4.59 प्लस दो साइड करेंगे 10 10th प्लस 2
300. नहीं, I think that should be the correct answer. कर लूँ? All of these are correct answers. आगे बढ़ते हैं. A cylinder has a side height of 70 centimeters and a volume of 0.1 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब में दिया हुआ है, वो सब सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए. 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर पड़ेगी इन फैक्ट, तो लीटर्स में नहीं है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिविंग योर सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर. अब वॉल्यूम की जगह मैं 0.1 अगर लिखूंगा तो मसला होगा. क्यों? क्योंकि 70 सेंटीमीटर हाइट है, उसको या तो मीटर्स में चेंज कर सकते हैं तो सेंटीमीटर्स में, लेकिन क्योंकि आंसर वन को चाहिए. अब 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर्स होता है और आपके पास क्यूब है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे. एक क्यूबिक चीज़ को चेंज करना है और हाइट जो है वो 70 रहेगी. तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 के साथ कितने ज़ीरोज़ मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, 6 ज़ीरोज़ मैंने. 6 divided by pi and 70. तो आर स्क्वायर आ रहा है 454.73. तो रूट ले लेते हैं, आर आ जाएगा 20. आई थिंक दैट शुड सर. यस. ओके. Okay, moving on. More, I think this is more like a question. Coordinate geometry. जिसमें एरिया आ गया, इसलिए मेंसुरेशन का पार्ट बन गया, बट लेट्स जस्ट स्किप दैट. हम जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ये कहता है स्पून इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इन कुकरी. इंस्टेड कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बोल एंड अ हैंडल. द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल, यानी इस पार्ट का वॉल्यूम जो है वो 20 सेंटीमीटर है. द हैंडल इज़ ऑफ लेंथ 5 मीटर्स, 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 सेंटीमीटर है. फिर जो है वो आपको क्या बताया गया है कि फाइंड द इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल. इंटरनल रेडियस स्फेरिकल बॉल, तो ये आर निकालना है. अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ये 4/3 होता है, तो उसको हाफ कर देते हैं तो ये 2/3 बन जाता है. याद रखें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है. अगर ये 20 है, ये 2/3 है, ये पाई है, तो आर क्यूब मैं निकाल सकता हूँ यूज कैलकुलेटर. डू दैट. डिवाइड बाई पाई. सही है. 20 × 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया. आर क्यूब हो गया. क्यूब रूट लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा. तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है 212. सही है कि 2.12. The hemispherical bowl of a geometrically similar spoon has an internal volume of 50 centimeter cube. Geometrically similar कर दिया. सही. Has an internal volume of 50 centimeter cube. Find the length of its handle. अब वॉल्यूम्स का रेशियो है, तो उसको लेंथ के रेशियो में पहले चेंज करना पड़ेगा. तो
20/50 जो है वो वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का रेशो है। मुझे क्या चाहिए, मुझे L1/L2 चाहिए। ये जो है वो मुझे जो है वो L1/L2 चाहिए। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सही, क्यूब रूट ले लूँगा तो ये L1/L2 के बराबर हो जाए। सही, L1 पे क्या है, 5 है। L2 का मुझे पता करना है तो इसको L ही रहने देते हैं। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 20/50। पहले वाले वॉल्यूम 20 है, दूसरे वाले वॉल्यूम 50 है। तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 20/50 और ये बन रहा है 0.7368। 5/L, L यहाँ आ जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0.78। तो ये आया 6799। सही है, एक और हो गया। फिर उसने कहा कि an open hemisphere of radius 5.5 is used to make a metal kitchen strainer. 50 holes are cut out of the curved surface area. Uh, Assume that the piece of metal removed to make each hole is a circle of radius 1.5 millimeters. सही है, millimeters 1 centimeter is 10 millimeters. Calculate the external surface area that remains. पहले हम ये करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो हो जाएगा वो 2πr² हो जाएगा। तो पहले देते हैं surface area of hemisphere 2πr², so 2 pi 5.5। सही है। वन होल का भी निकाल लेते हैं। वन होल हो जाएगा πr²। अब r इसमें जो होगा वो 1.55 डिवाइडेड बाई 10। सही है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10। When will I do vectors? O level vectors थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। This is O level maths. ये बन रहा है 0.07706। 9 कर देते हैं इसको। सही, 50 होल्स को माइनस करना है तो 2 pi 5.5 3 टाइम्स 0 बहुत अजीब सा कैलकुलेशन हो गई है, बट करते हैं। 2 pi 5.5 माइनस 1.5 ये बना 2 बिल्कुल सही बन रहा है। तो 1.7 हो जाएगा क्योंकि मुझे राउंड ऑफ। ओके, फिर OAB is a sector of a circle, center O, radius 6. AOB is equals to 25 degrees. Calculate the length of the arc AB. आर्क लेंथ का फार्मूला होता है θ/360 टू 2 πr। तो 25/πr 2.62। Calculate the area of the sector AOB। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर ओवर 2 πr²। 25/360 pi
R is 6. 25 divided by 3 pi into 7 point. 854, so 8.85. सही है. फिर ये कहते हैं the sector OAB is the cross section of a slice of cheese. The slice has a height of 5. Calculate the volume of the cheese. तो volume होगा area of cross section into length or height. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी आपने निकाला 7.854 लिख देता हूँ मैं इसको बिकॉज राउंड ऑफ हुआ था. लेंथ जो है वो उसकी 5 है. तो 7.854 डिवाइड बाई 5 आंसर आ रहा है 39.27. सो 3 सिग्निफिकेंट आंसर. ओके, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्लाइस. तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ प्लस 2 टाइम्स एरिया क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया था 7.854. पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आएगा. आर्क लेंथ हमने आई विल डू दैट टू पार्ट्स. ए बी निकाला हुआ है हमने 2.62 एंड देन 12 उसमें करेंगे. इनटू लेंथ जो है मेरे पास 5 है. 2.62 प्लस 12 5 देखो 88. ओके. Another 25-degree slice of cheese has 3 times the height and twice the radius. 3 times the height यानी height जो है वो 15 है और रेडियस में अभी लेके चल रहा था 6, तो इसके height आ रहा है. तो वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम is simple than area of cross section to length. तो लेंथ उसने बता दिया कि अब 15 हो गई है. हाइट है बेसिकली 15 हो गई है और 25 over 360 by 12 स्क्वायर. तो ये 25 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई टू 12 स्क्वायर्ड 50. 150 पाई आ रहा है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखिए तो 471 आ जाएगा. A dairy produces cylindrical cheeses, each with a volume of 800 centimeter cube. The height 8 centimeter, radius r centimeter vary. तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो 800 के बराबर है. एक्सप्रेस एच दिस, ये बन जाएगा 800 ओवर पाई आर स्क्वायर. सही है. व्हाट हैपेंस टू द हाइट इफ द रेडियस इज डबल्ड. तो ये बेसिकली ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. इफ़ यू नोटिस कि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर चला गया और ये बेसिकली सारी के वैल्यू हो गई है. सही है. इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं. एक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आर जो है वो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें पहले 10 था. सही है. तो ये हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर. तो आपकी जो अब वो आ जाएगी हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 ओवर पाई आ जाएगी. अब आपको क्या करना है. आपको रेडियस को डबल करना है. अब मैंने 10 कैसे लिया. मैंने अज्यूम कर लिया. मैंने कोई उसके लॉजिक नहीं लगाया. मैंने अज्यूम कर लिया है. सही है. तो 800 डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे. ये बन जाएगा 2. ओके. तो हाइट पहले 8 ओवर पाई थी. अब कितनी हो जाएगी 2 ओवर पाई हो जाएगी. तो हम क्या लिखेंगे कि द हाइट इज reduced by a factor of
one fourth, or the height is basically reduced to one fourth of its actual height. Is reduced to one fourth like this, to one fourth of its actual. Let's look at question number 19. You get the AC is the diameter of the circle, center O, radius 5, ACB is equal to 64. Calculate the length of the arc BC. ये वाला आर्क निकालना है, सही है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच मीन्स दैट काफ़ी सारी कैलकुलेशंस, सही है। ये एंगल जो है वो, ये डिस्टेंस 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है। तो किसी तरह मुझे ये वाला एंगल निकाल के आपको बताना है, विच मीन्स दैट आई शुड फर्स्ट फाइंड दिस एंगल, सही है। मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी है। अ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक आइसोसलीस ट्रायंगल है, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। आई थिंक दैट्स इजी दैन। नहीं, डायरेक्ट ये वाला एंगल आ रहा है तो ज़्यादा आसान है। 64 × 2 180 माइनस आंसर कर लेते हैं, तो एंगल जो आ रहा है वो 52 आ रहा है। तो 52/360 इंटू पाई आर, 52 डिवाइड बाई 3 पाई इन आर, तो मेरे पास आ रहा है 4.534। इजी क्वेश्चन था वो, ट्रायंगल बनाना ज़रूरी था, उसके बगैर फिगर आउट नहीं होता। पार्ट भी देखते हैं। बेकिंग ट्रेज एंड ओपन सिलेंडर ऑफ रेडियस 15.5 with a rim. The outer edge of the rim is circle of radius. Calculate the area of the top of the surface of the rim. एक बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो पाई 0.5 स्क्वायर्ड माइनस पाई 15. ये बन रहा है 100.5, तो मैं लिख दूंगा 101। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करके 44 identical circular holes are cut out of the bottom of the tray. The area of the bottom that remains 650. Calculate the radius of each circular hole. Remaining 650 है, मैंने कहा पहले बॉटम ऑफ द ट्रे का निकाल लेते हैं। उसका एरिया होगा पाई इंटू 15.5 स्क्वायर, ये अंदर वाला एरिया, सही है। और उसमें से आपने होल्स माइनस किए। अब ईच होल इज ऑल्सो अ सर्कल, राइट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लिख देते हैं इसको, स्मॉल आर। रिमेनिंग 650 है, तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर्ड बाय 15.5 स्क्वायर्ड माइनस 650। और फिर पहले ये साइड निकाल लेता हूँ, पाई इंटू स्क्वायर्ड, तो बच रहा है 104.768 डिवाइडेड बाय पाई करूँगा तो आर स्क्वायर्ड आ जाएगा, और रूट करूँगा 5 ओके।
Part 3. To make a pizza, the baking tray is completely filled with dough to a depth of d millimeter. The open cylinder holds 500 cube of dough. Calculate the depth of the dough, giving your answer correct to the nearest millimeter. सही है. तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है. The open cylinder holds 500 centimeter cube of dough. So pi r cube, pi r square h, sorry, pi r square h, cylinder है ना, pi r square h equals to 500, pi 15.5 squared into h equals 500. तो क्या आ रहा है? हाइट आ रही है 0.662, ये आ रही होगी सेंटीमीटर्स में, उसको मिलीमीटर्स में करना है तो ये आ रही है 6.62, 6.62 the height of the dough. सही है. वॉल्यूम हो गया. लेट्स डू दिस एज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस मैराथन. ये कहता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज दिस. सॉलिड वन इज a cylinder with a small cylinder removed from its center as shown in the diagram. The height of the cylinder is 20 and the radius of the smaller cylinder is r. The radius of the larger cylinder is 3.5 centimeters greater than the radius of the smaller cylinder. उसने कहा the volume of solid 1, okay, the entire solid, just carve out हुआ है, is 3000. So 3000 is large cylinder minus small cylinder. Large cylinder हो जाएगा pi r plus 3.5 square और इसके आगे h, और छोटा सिलेंडर pi r square equals to 3000. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वैसे. सॉरी, तो 20 कॉमन है और पाई कॉमन है, तो 20 और पाई को कॉमन निकाल लेते हैं. ये r प्लस 3.5 स्क्वेर्ड माइनस आर स्क्वेर्ड बन रहा है. तो 20 पाई, अब अंदर ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे तो a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर होता है 112.25 माइनस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के साथ कैंसिल. सही. अब कैलकुलेशन भी आसान है. 300 डिवाइडेड बाई 20 पाई इक्वल्स टू 7r प्लस 5. सही है. 3000 डिवाइडेड बाई 20 पाई 47.746, 47.746, उसमें से 12.5 माइनस होगा तो 7r और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा तो r आ जाएगा 5. That is the answer. ये 4 मार्क्स. फिर solid 2 is a cone. Solid 2 is a cone with a volume of 3000 c. Perpendicular height of the cone is twice its radius. So radius 2r. या x and 2x कह लेते हैं, ज़्यादा आसान है. 3000 1/3 pi r square h. सही है. 9000 equals to 2 pi x cube. X cube equals to 9000 divided by 2 pi. This is 9000 divided by 2 pi cube root of 1.
11.3। तो पुराना वाला सिलेंडर 20 का था। ये वाला सिलेंडर, ये वाला हाइट इसकी हो जाएगी 26। 2 टाइम्स 11 सिग्निफिकेंट 22.54 बन रही है। तो सॉलिड 2 is taller by 2.54. Okay, the diagram shows a triangular prism of length 24. Cross section is an equilateral triangle. Equilateral triangle होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं और सारी साइड सेम होती हैं। तो कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना होता है। क्रॉस सेक्शन into length plus 2 times area of cross section. तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सिंपल सी बात है 8 प्लस 8 प्लस 8, लेंथ 24 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमने करना पड़ेगा हाफ ई 631 पॉइंट 631। Okay, that is the end of the live stream for today. I will be back with it in week only.